جزائر سے متعلق آرڈیننس سندھ کی سالمیت پر حملہ، مخالفت میں قرارداد لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا اعلان۔ شہریار شر نے تحریک انصاف کے موقف کی نفی کر دی۔ بائیکاٹ چھوڑ کر جزائر کی مخالفت کرنے اسمبلی اجلاس میں شریک۔ موشن نمبر 1 by راجہ اظہر خان۔ موشن نمبر سندھ اسمبلی میں شور شرابہ، اپوزیشن کی شدید نعرے بازی، حکومتی ارکان بھی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ ایوان مچھلی بازار میں تبدیل۔ ان کو پتہ نہیں کہ یہ کس آگ سے کھیل رہے ہیں، جس طرح سے یہ بے یقینی بدامنی پھیلانا چاہ رہے ہیں، ان سے ان کا حساب لیا جائے گا۔ بلاول، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ ایک وراثت کی وجہ سے آپ کو ایک پارٹی کی لیڈرشپ ملی ہے۔ مریم نواز وہ بھی ایک وراثت کی پیداوار ہیں، صرف جوتے اور کپڑے اور میک اپ سے تو نہیں ہوتا۔ سندھ پولیس کے استعفے مشکوک، دال میں کچھ کالا ہے۔ پی پی چیئرمین نے جان بوجھ کر معاملے کو سیاسی بنایا۔ اپوزیشن شر کی قوتوں کی نمائندہ اور ٹھگوں کا ٹولہ۔ معیشت کی جڑیں کھوکھلی کرنے والے کرپشن زدہ چہروں کو دھول میں چھپانا چاہتے ہیں۔ بلاول صاحب، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پر پتھر نہ پھینکیں۔ شبلی فراز کی وارننگ، مریم نواز صرف جوتے اور کپڑے پہن کر بے نظیر نہیں بن سکتی۔ وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس۔ جو تاریخی معاشی بحران کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جو تاریخی بے روزگاری کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جو تاریخی مہنگائی کا ہم سامنا کر رہے ہیں، وہ آپ جانتے ہو کہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی سنبھال سکتی ہے۔ عوام کو تاریخی معاشی بحران اور بے روزگاری کا سامنا، مہنگائی نے بھی جینا دوبھر کر دیا۔ صرف پیپلز پارٹی ہی ملک کو موجودہ صورتحال سے نکال سکتی ہے۔ بلاول بھٹو کا اسکردو میں خطاب۔ جس ملک کے پولیس چیف کو اغوا کر لیا جائے رات کے 4 بجے، اس ملک کے عوام کا کیا بنے گا؟ یہ وفاق اور صوبے کے درمیان ٹکراؤ ہے۔ یہ ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کی بات ہے۔ سندھ پولیس کے افسران نے جو اصولی سٹینڈ لیا ہے، ان سے بھی اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ آئی جی سندھ کے ساتھ کیا ہوا یہ وقت بتائے گا۔ واقعہ وفاق اور صوبے کے درمیان ٹکراؤ ہے۔ وزیر اعظم کو فون کر کے صورتحال معلوم کرنی چاہیے تھی۔ حکمرانوں سے نجات دلانے کے لیے پی ڈی ایم کی تحریک جاری رہے گی۔ شاہد خاقان عباسی کا عزم۔ کراچی میں آئی جی کو یرغمال بنا کر مقدمہ درج کرایا گیا۔ صوبائی اختیارات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ 2018 میں عوام کا ووٹ چوری کیا گیا۔ پی ڈی ایم اتحاد دوبارہ انتخابات کرانے کے لیے ہے۔ مولانا فضل الرحمان۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سینئر پولیس افسران کی بیٹھک۔ پولیس کو آزادانہ اور غیر جانبدارانہ طریقے سے کام جاری رکھنے کی ہدایت۔ پولیس کا مورال کسی صورت کم نہیں ہونے دیں گے۔ حکومت پولیس کے باقی معاملات کو خود دیکھے گی۔ مراد علی شاہ۔ کوئی شبہ نہیں، سندھ پولیس کے افسران بلاول ہاؤس کے اشارے پر چھٹی پر گئے۔ ابھی معاملات کھلیں گے۔ اداروں کو نیچا دکھانے کی کوششیں اور سازشیں ناکام بنانا ہوں گی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا ٹویٹ۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں نجی بینک میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ، 5 افراد جاں بحق، 27 زخمی۔ 4 منزلہ عمارت کا ایک حصہ گر گیا، 2 فلیٹس متاثر، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان۔ متعدد فلیٹس کے شیشے ٹوٹ گئے۔ میرا بھتیجا ہے، چوری کرنے جا رہا تھا تو وہ موٹر سائیکل پہ کونے پہ گیس دھماکہ ہوا تو ایک دم جو ہے نا بھاگ گرا۔ پیٹ میں کچھ لگا، اس کو پیٹ میں نہیں داخل نہیں کیا، نہیں پہلے کاروائی نہیں شروع کی ہے نا۔ پہلے پیسے منوسا کو پہلے پیسے بے گھر تو چاہیے، 50,000 پہلے جمع
करो, बाद में जो ऑपरेशन करेंगे। कब से भाग रहे हैं, सुबह से जैसे लेके आए, पहले पैसा जमा कराओ। वो मजदूर है कहाँ, इतना दूर दूर तक जो है ना लोगों से पैसे इकट्ठे किए, कार्रवाई क्यों नहीं की, पहले क्यों नहीं कार्रवाई की। इलाज के लिए 50,000 मांगने पर लवाहिकीन का पारा हाय। निजी अस्पताल इंतजामिया की बेहिसी से धमाके का जख्मी भतीजा दम तोड़ गया। गरीब हैं, हजारों रुपए कहां से लाएं, खातून की दुहाई। अस्पताल के दाखिली गेट पर मुश्तइल अफराद की तोड़फोड़। तबाह होने वाले फ्लैट का रिहायशी खालिद सुल्तान भी जिंदगी की बाजी हार गया। स्कूल टीचर अहलिया और बच्चे घर पर मौजूद नहीं थे। अल्लाह नूर अपार्टमेंट्स की दूसरी और तीसरी मंजिल ज्यादा मुतासिर, रिहायशी खौफजदा। डीजी रेंजर सिंध का गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी पर धमाके की जगह का दौरा। सेक्टर कमांडर और विंग कमांडर भी साथ। मेजर जनरल उमर बुखारी ने मुतासरा फ्लैट्स का मुआयना किया। मरियम नवाज के कमरे पर हमले की तहकीकात की जाए, मरियम औरंगजेब का मुतालबा। आईन पाकिस्तान हर शख्स को चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ का हक देता है। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। पीडीएम के 2 जलसों से ही हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई, खुर्रम दस्तगीर का दावा। नवाज शरीफ पाकिस्तान में करप्शन मुकदमात में सजा याफ्ता, मुल्क बदर करके वापस भेजा जाए। पाकिस्तान ने बरतानिया को खत लिख दिया। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की तस्दीक कर दी। बरतानवी वज़ीर दाखिला की जानिब से खत मौसूल होने की तस्दीक। शहबाज शरीफ को कानून के मुताबिक सहूलतें देने का हुक्म। अपोजिशन लीडर को मैट्रेस, कुर्सी, घर का खाना और दीगर जरूरी सहूलियात फराहम की जाएं। नून लीग की दरखास्त पर एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। कोरोना फिर सर उठाने लगा। 24 घंटे के दौरान मजीद 19 अमवात। मुल्क भर में 3,24,744 मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 9,378 हो गई। कोरोना के फैलाव पर सख्त इकदामात का इंदिया। सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी रहीं तो मुख्तलिफ शोबे बंद किए जा सकते हैं। NCOC की वार्निंग। ट्रांसपोर्ट, मार्केट्स, शादी हॉल्स पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती का केस। लाहौर की कैंप जेल में दोनों मुलजमों की शनाख्त परेड। मुतासरा खातून ने पहचान लिया। जेल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी सख्त। की कीमतें बढ़ रही हैं। देखें ना, चीनी 110-120 रुपए किलो बिक रही है। कहाँ का इंसाफ है? गरीब आवाम तो मरी जा रही है। चीनी के लिए हुकूमत के चाहिए था कि सख्त से सख्त हिकमत अमली अख्तियार करे। ऐसी फोर्स बनाई जाए जो इनको कम से कम लाख से 2 लाख रुपए जुर्माना करे, ताकि इनको इबरत का निशान बनाया जाए। यह हमारे माशरे के लिए कलंक का टीका है। चीनी जो है वो कम मजीद नहीं हो रही, दिन ब दिन चीनी का रेट बढ़ रहा है, अभी तक रुका नहीं है। यही सुनते आए हैं, नोटिस है, ये रुका है, रुका नहीं है अभी तक। ये मतलब 100 रुपए किलो होल सेल रेट जो है वो हो गया है। चीनी की कीमतें रोज पर रोज बढ़ती जा रही है। पहले 52 रुपए थी, अब 110 हो गई है। मेहरबानी करके आपस में बैठ के कोई आवाम के लिए कोई रिलीफ निकाले, कुछ फंड करे कि चीनी की कीमतें कम हो जाए। आज से ज़्यादा बढ़ गई, चीनी 110 रुपए किलो हो गई। हुकूमत को चाहिए चीनी की रेट कम करे और हुकूमत को चाहिए आवाम को रिलीफ करने। चीनी बहरान जीना हराम। हुकूमत मुनाफा खोरों को लगाम डालने में नाकाम। चीनी 100 से 110 रुपए फी किलो में फरोख्त। दावों से दिल न बहलाएं, रिलीफ दिलाएं, शहरियों का मुतालबा। स्टोर के सामने खड़े हैं अभी, यहाँ पे हैं। यहाँ पे तो हफ्ते में एक दिन आती है, 3 दिन दफा चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब आते हैं कहते हैं ये चली गई है, और समझ नहीं आती है कि वहाँ भी नहीं मिलती है, यहाँ भी मिलती है, गे किधर है। तो गरीब आवाम तो धक्के खा रही है। पहले वो चोर थे, वो 55 रुपये में दे रहे थे, अब ये अमीन और सादक आ गए हैं, या 110 में चले गए हैं, वो भी नहीं मिलती है आवाम को। चीनी मिलती ही नहीं है।
1000 रुपये का सौदा लो, 2000 का फिर चीनी देते हैं। पाकिस्तान में सस्ता इंसान है कि नहीं? कौन पूछने वाला, कोई मार दे, कौन पूछने वाला? कुछ नहीं है यहाँ, क्या होगा? हर आदमी रो रहा है, हर आदमी रो रहा है, हालात ऐसे हैं। कुछ देखने में नजर नहीं आ रहा। रोज चीनी महंगी, रोज चीनी महंगी। अब दुकानदार ये कहने लगे हैं कि 115 रुपये चीनी भी सेल हो सकती है, क्योंकि कहते 5000 का थोड़ा लेके आ रहे हैं, 5000 से ऊपर जा रहा है। अवाम जो चीनी कहाँ से लेके आएंगे? स्टोरों पे चीनी आती नहीं है, आती है तो इतनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं, तो बहुत मुश्किल हो गई है। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर, बिजली मजीद ₹1.36 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नर्ख बढ़ाने की दरखास्त कर दी। नेपरा में 29 अक्टूबर को समाअत। FATF के 3 रोजा वर्चुअल इजलास का आज से पेरिस में आगाज। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने से मुतल्लिक हतमी फैसला मुतवक्के। इस्लामाबाद सितंबर तक के इकदामात की रिपोर्ट पहले ही जमा करवा चुका है। तीन साल के दौरान शहरियों के नैब पर एतमाद में 220% इजाफा। लाहौर ब्यूरो को 33,911 शिकायत मौसूल। प्ली बार्गेन के जरिए 15 अरब 81 करोड़ 70 लाख रुपए रिकवर किए गए। कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। चीनी कंपनीज पर पाबंदियों के हामी ट्रंप बेनकाब। अमेरिकी सदर के होटल का चीनी बैंक में अकाउंट निकल आया। ट्रंप ने अपने मुल्क से ज्यादा टैक्स चीन में अदा किया, अमेरिकी अखबार का दावा। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम का रावलपिंडी में पड़ाव। मेहमान स्क्वाड की प्रैक्टिस। दौरे के दौरान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी, सैयद आयशा नाज और मैं हूं उमर दराज। दुनिया हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। सिंध असेंबली की कार्रवाई का तस्करा सबसे पहले करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ये कहना है कि सिंध की सालमियत पर हमला किया गया, सिंध की सालमियत पर हमले के खिलाफ करारदाद लाएंगे, ये कहना था वज़ीर आला सिंध का, और कहा कि पूरी ताकत से जज़ायर ऑर्डिनेंस को वापस कराएंगे। मुराद अली शाह ने यह भी कहा कि वफाक के ऑर्डिनेंस पर पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। आइन के मुताबिक जज़ायर सूबे की मिल्कियत है। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सिंध की सालमियत, सिंध के ऊपर जो अटैक हुआ है, उस अटैक के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। रेजोल्यूशन क्या है कि एक ऑर्डिनेंस आया है वफाक की तरफ से, सदर साहब ने वो ऑर्डिनेंस का इजरा किया है। उस ऑर्डिनेंस को असेंबली हुकूमत सिंध को कह रही है कि हर तरीका आजमाएं और फेडरल गवर्नमेंट को कहें कि ये ऑर्डिनेंस वापस लें, सदर पाकिस्तान से कहें कि ये ऑर्डिनेंस वापस लें। आप लोगों ने आज पावर दिया, हम और ज्यादा ताकत से लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कराएंगे, इस ऑर्डिनेंस को वापस लेंगे। इस सारी सूरत हाल से जुड़ी एक अहम खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असेंबली शहरियार खान शर ने पार्टी मौक़िफ़ की मुखालिफत कर दी। असेंबली इजलास का बॉयकॉट छोड़कर वो सिंध हुकूमत की करारदाद की हिमायत करने पहुंचे। शहरियार शर ये कहते हैं कि सिंध के जज़ायर ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद की हिमायत खुलकर कर रहा हूं, और उनका यह भी कहना था कि पार्टी की जानिब से बयान वापस लेने का प्रेशर डाला जाएगा। वो सिंध के बेटे हैं, अपना मौक़िफ़ वापस नहीं लेंगे। इस बारे में मोहम्मद अशद से मजीद जानते हैं। अशद, शहरियार शर का जो मौक़िफ़ सामने आया, इससे तो सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली। जी बिल्कुल, देखें आज जैसे ही सिंध असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो इजलास शुरू होते ही MKM और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों जमातों के जो MPAs थे उनकी जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। दोनों जमातों ने अपनी अपनी करारदादें जो थी वो जमा कराई थी, लेकिन जब वो जैसी वो बात करना चाहते थे तो उसकी तरह असेंबली ने उनको इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने काफ़ी जो है यहाँ पे नारेबाजी की और उसके बाद शोर शराबे के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर MPAs और उसके अलावा MKM के MPAs जो थे वो जो हॉल है वहाँ से वॉकआउट कर गए। लेकिन जो शहरियार शर हैं, जो PTI के MPA हैं,
انہوں نے جو ہے واک آؤٹ نہیں کیا, اپنی جماعت کے ساتھ وہ نہیں رہے, وہ بالکل سندھ اسمبلی کا جو ہال ہے اس کے اندر موجود رہے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سندھ حکومت جو پیپلز پارٹی کی جانب سے جو قرارداد لے کر آئی ہے, جو پیش کی جا رہی ہے, اس قرارداد کی وہ حمایت کرتے ہیں. جس طریقے کا جو صدارتی آرڈیننس جزائر کے حوالے سے جو پاس کیا گیا ہے وہ انہوں نے اس کی مخالفت کی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اصولی موقف پہ بالکل قائم ہے. جو جزائر ہیں وہ سندھ حکومت کی پراپرٹی ہے, سندھ کی ملکیت ہے, اور ان کو اس طریقے سے جو ہے اس کے اوپر آرڈیننس جو ہے وہ جاری نہیں کیا جا سکتا. پیپلز پارٹی کے تمام تر جو ایم پی ہیں, خصوصی طور پہ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں, انہوں نے ان کے جو ہے اس عمل کے اوپر شکریہ بھی ادا کیا, جبکہ جو اپوزیشن کی ایک اور جماعت ہے جی ڈی اے, انہوں نے بھی اس موقف کے اوپر جو ہے وہ بھی انہوں نے بھی واک آؤٹ نہیں کیا. جی ڈی اے نے بھی جو ہے پیپلز پارٹی کی جو قرارداد ہے اس کو جو ہے اپوز نہیں کیا, بلکہ اس کی. جی بہت شکریہ آپ کا محمد اشہد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.